Bismillahirrahmanirrahim, and we are proceeding towards the next topic of ours. And today's topic that we need to discuss today is the five forces model. I'm going for a little recap. In the first class that we studied in the last class, in the last session, we have discussed the organization and its external environment. And along with that, we have discussed the strengths, weaknesses, along with the models used for them, like, for example, value chain model we discussed and the internal organization analysis. We discussed that model as well. So now today we are going to start the external analysis, and this external analysis specifically focusing on opportunities and the threats analysis, which may prevail outside in the environment and organization. We need to look at them. As an entrepreneur, yes, skilled students must be known to how to use the models and how they can take up or identify the strength and weaknesses which may be available, which may be existent rather in the environment. So two models we normally use. First one is the five forces model, and the second model will be the passive model. And we'll be discussing the passive model a bit after. So now when we talk about five forces model, this is the model that has been given by Michael Porter. It is given by the Michael Porter, and the Michael Porter is the author says that before moving to, it is what crux of the model, before moving to an industry, an organization must analyze the industry, must analyze the industry on the basis of five forces. And these are five forces, which are the basis of the specific analysis. On the basis of five forces, full stop. The investigation will provide the company with available opportunities and threats thereinto. If opportunities are more, move on. And if the threats are more, and then if the threats are more, do not move, or move with the protection. माइकल पोर्टर कहता है कि किसी भी बिजनेस में जाने से पहले चाहिए जो स्पेसिफिक इंडस्ट्री को फाइव फोर्सेस की बुनियाद पर अच्छी तरीके से एनालाइज कर ले। अगर तो आपका एनालिसिस बताता है कि अपॉर्चुनिटी ज्यादा हैं इन फाइव फोर्सेस की बुनियाद पे, तो जरूर जाइए and जरूर make the business. And if you feel that threats are more, do not go, because if the threats will be more, that means that the threats will be more. That means that the organization may suffer the business. And if the threats are more, then do not go. And if even then you go with the threats, and then we go with the protection sheet, it is what the Michael Porter is saying is. So now we talk about कि इंडस्ट्री क्या है, पहले इस बात को जानने की जरूरत है, और फिर इसको भी देखने की जरूरत है कि कंपटीशन क्या है, और फिर इस बात को भी देखने की जरूरत होगी कि अगर हम बात करते हैं कि जाएं तब जब अपॉर्चुनिटीज हों, और ना जाएं जब थ्रेट्स हों, तो ये कैसे बात जो है ना, वो कब ये बात जो है वो ज़्यादा इफेक्टिवली प्रिवेल कर सकती है, और कैसे हम इसको आगे लेकर चलें, तो इस पर हमारी बात करने वाले। चलो, जब बात करते हैं ना हम इंडस्ट्री की, तो हमें तीन कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए। नंबर वन, मैं फाइव फोर्सेस की बात बाद में करता हूँ, पहले मैं आई एम गोइंग टू वर्क ऑन दिस one thing is the first, before going for the industry analysis, we must understand three concepts. Number one is known as a firm. The second concept is known as industry, and third one is known as a sector. We talk about the firm. It is also known as organization, and it is also known as a company. So different words are used. Okay, so a company, a firm, or the organization, organization. The firm is known as an individual there. An individual there in a
an individual player in a specific service or good. किसी एक स्पेसिफिक सर्विस या गुड को बनाने या प्रोवाइड करने में जो एक सिंगल प्लेयर होता है उसको एक फर्म कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, टेक इट हियर लाइक Ufone is one of the firms and it is working in the provision of the wireless services or the mobile phone service in Pakistan. So it is known as a firm. So industry is known as sum of firms which are involved, which are involved, which are involved in a similar nature of business. For example, talk about the mobile service provision. So Ufone is a single player, but Mobilink and then the Ufone, Mobilink plus Ufone, and then number 3 is Mobilink and the Ufone, and number 3 is Zong, and these all firms which are providing similar type of service, which were known as the firms individually. So now when they constitute or they mix together, they combinedly make an industry. For example, a Ufone is a firm. So Ufone plus Mobilink plus Zong plus Virate plus all other mobile service providers, they combinedly constitute an industry. So एक प्लेयर फर्म कहलाता है. बहुत से प्लेयर्स जो उसी सर्विस को प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो मिलके क्या बनाते हैं? दे ऑल टुगेदर मेक एन इंडस्ट्री. सो नाउ अब देखिए आगे हम आते हैं सेक्टर पर. सेक्टर इज नोन एज सम ऑफ इंडस्ट्रीज. Sum of industries in the similar type of service. Similar type of service. For example, अगर हम बात करते हैं यूफोन की, मोबिलिंक की एंड जोंग की, वो मिलके एक इंडस्ट्री बना रहे हैं और इस इंडस्ट्री को हमने नाम दिया है मोबाइल सर्विस इंडस्ट्री. मोबाइल सर्विस इंडस्ट्री की स्पेशलाइजेशन क्या है? कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना. मगर अगर हम देखें तो साइमल्टेनियसली यूफोन के साथ पीटीसीएल भी एग्जिस्ट कर रहा है. किसी मार्केट में पीटीसीएल भी एग्जिस्ट कर रहा है. अगर पीटीसीएल इस मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा है और साथ वी फोन एग्जिस्ट कर रहा है, वो तो तार वाले फोन है, लेकिन दे तो वो भी कम्युनिकेशन सर्विसेज ही रहे हैं. इसका मतलब ये हो गया कि जो मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं ये मिलकर मोबाइल सर्विस इंडस्ट्री बना रहे हैं. जो आपका पीटीसीएल है और जो वी फोन वगैरह हैं जिनके साथ तार भी लगी होती है, या नेयाटेल है जिसके साथ तार भी लगी होती है, तो हम ये कहते हैं कि वो टेलीकॉम्स, वो कहलाएंगे टेलीकॉम मीन्स तार, वो हम कहलाएंगे टेली कम्युनिकेशन. So it is mobile service, that is tele service. So it is mobile communication, that is telecommunication. It is mobile industry, that is telecommunication industry. So अब ये दो इंडस्ट्रीज हैं, एक वायरलेस एक वायर वाली. एक को कहते हैं हम मोबाइल सर्विस इंडस्ट्री, दूसरे को हम कह रहे हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री. अब जब ये दोनों इंडस्ट्रीज मिलेंगी तो एक जैसी सर्विस देने कम्युनिकेशन की, तो ये यहाँ पे बनाएंगे, मिल के दोनों बनाएंगे कम्युनिकेशन सेक्टर. So some of similar type of business firms industry and some of similar service type industries is known as a sector. For an example, if you talk about the transportation, तो अगर हम देखें तो एक एयर ट्रांसपोर्ट है, वो बनाती है एयर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री. एक रेल है, वो बनाती है रेल ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री. फिर आपके जो सड़क पे चलने वाले सारी बसेस है, वो कंपटीटर्स बहुत सी फर्म्स बना के मिलकर अलग-अलग सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं सड़क के ऊपर. दैट इज नोन एज द रोड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री. So road transport industry plus एयर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री प्लस आपका रेल ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, तीनों डिफरेंट तरह की ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री जब मिलती हैं तो वो बन जाता है ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर. तो इस तरह से ये तीन फर्म्स हैं, ये तीन कॉन्सेप्ट हैं, फर्म्स एंड इंडस्ट्री एंड द सेक्टर. अब हम जब बात करें इन तीनों चीज़ों की, तो जब हम इन तीनों को बात करते हैं तो याद रखिएगा इन तीनों के दरमियान जो चीज़ एग्जिस्ट करती है दैट इज नोन एज कॉम्पिटिशन. जब हम बात करते हैं इन तीनों की, इन सब के दरमियान में जो चीज़ एग्जिस्ट करती है दैट इज नोन एज कॉम्पिटिशन, ताकि हम अपने मॉडल की एसेंस को समझ सकें. तो कंपटीशन जो है, अब वो क्या है उसको भी जानना जरूरी होगा. ये सारी फर्म्स एक इंडस्ट्री में काम करती हैं, ये एक दूसरे को कॉम्पिटिटर कहलाते हैं, उनके दरमियान होने वाला मुकाबला कंपटीशन कहलाता है. अगर हम ये बात करते हैं कि कंपटीशन क्या है तो उसको जानना जरूरी होगा. सो कंपटीशन क्या है हम इसको देखते हैं. कंपटीशन इज एन एक्टिविटी in which similar nature of firms try
to occupy, try to occupy similar type of firms, and they try to occupy the customers of each other. Customers of each other. लोग कहते हैं सतीशान आप इतने स्ट्रेट हैं डेफिनेशन लिखने में। बात यह है कि आप बात घुमा के करें या शाम को इस कंक्लूजन पे पहुंचे। कंपटीशन वो स्पेसिफिक एक्टिविटी है जिसमें एक फर्म जो काम कर रही है वो एक दूसरे के कस्टमर्स को स्नैच करने की कोशिश करे। अगर ये एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्नैचिंग कस्टमर्स खत्म हो जाए तो फिर कंपटीशन क्या हो? तो कंपटीशन हुआ ही कुछ नहीं। तो फिर इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये कंपटीशन है जिसमें फर्म्स एक दूसरे के कस्टमर्स को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी भी टाइप होंगी। हाँ जी, इसकी टाइप नंबर 1, पहली टाइप इज नोन एज ब्रांड कंपटीशन। ब्रांड कंपटीशन। Number 2 is known as form competition. Number 3 is known as industry competition. And number 4 is known as generic competition. Generic. 4 तरह का competition. Number 1 is brand competition. Number 2 is known as industry. Number 2 is form. Number 3 industry. Number 4 is generic. अब ये 4 तरह का कंपटीशन है। यानी कि दूसरे वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि कॉम्पिटिटर्स की 4 टाइप्स होती हैं। The first type of competitors is known as brand competitor. The second type is known as firm competitor. The third type is known as industry competitor. And the fourth type is known as generic competitor. So मतलब ये हो गया कि competitors की भी 4 टाइप्स हो गए। अगर 4 ही competition एग्जिस्ट करते हैं तो competitors की भी 4 टाइप्स हो गए। तो इसमें जो पहली टाइप है that is brand competition, the second type is known as the firm competition, the third one is the industry competition, and number 4 is known as generic competition. अगर ये 4 तरह के कॉम्पिटिशन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इनमें फर्क क्या है? That would be very important to be understood by all of us and what that difference is. Now I'm going to work on it. पहले वाला है ब्रांड कंपटीशन। तो याद रहे मैं कभी भी चीज़ों को ज़्यादा लंबा नहीं खींचता। I try to be within very specific information ताकि स्टूडेंट जो है वो उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें। तो हम पहले शुरू करते हैं ब्रांड कंपटीशन से। ब्रांड कंपटीशन क्या है? मस्ट बी अंडरस्टूड। बनाओ। अब इसमें पहली टाइप है ब्रांड कंपटीशन। जब हम बात करते हैं ब्रांड कंपटीशन की तो ब्रांड कंपटीशन में हम बात करते हैं नंबर 1, ब्रांड कंपटीशन में सेम प्रोडक्ट होती है। नंबर 2, सेम कस्टमर होता है। सेम प्राइस होती है। सेम प्राइस। तो ब्रांड कंपटीशन वो कंपटीशन है जिसमें काम करने वाले सारी फर्म्स की प्रोडक्ट भी सेम, कस्टमर भी सेम, प्राइस भी सेम। अपने मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स के एग्जांपल कोट कर लें। अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स वो एक दूसरे के ब्रांड कॉम्पिटिटर भी खिलाएंगे और ये कंपटीशन कराएगा ब्रांड कॉम्पिटिशन। सो नाउ आगे चलिएगा। नंबर 2, फार्म कंपटीशन। फार्म कंपटीशन में द प्रोडक्ट इज सेम customer, same customer, number 3 is different price। आप सेम कस्टमर पर कंफ्यूज मत होइएगा। सेम कस्टमर से मुराद है कि ऐसे ही यूजर्स। सो अगर हम बात करते हैं सेम प्रोडक्ट, फॉर एन एग्जांपल मोबाइल फोन वर्सेस मोबाइल फोन, सेम कस्टमर मींस वही मोबाइल फोन के यूजर्स एंड डिफरेंट प्राइसेस। एक फोन 25,000 रुपये का है और दूसरा फोन जो है वो 75,000 रुपये का है। तो ये दोनों एक दूसरे के फॉर्म कंपटीटर्स कहलाएंगे। इनकी शायद क्वालिटी में प्रोडक्ट के डिफरेंशियल होगा, ब्रांड इमेज का डिफरेंशियल हो सकता है, तो इसलिए प्रोडक्ट की प्राइस वेरी कर रही होती है। सो ब्रांड इमेज की वजह से वेरी कर सकती है, प्रोडक्ट क्वालिटी की वजह से वेरी कर सकती है, कुछ भी हो सकता है। फॉर एन एग्जांपल सैमसंग इज एक्सपेंसिव देन टेक्नो फोन्स एंड द एप्पल फोन इज एक्सपेंसिव देन सैमसंग। ये भी एक रीजन मतलब आई मीन ये एक एग्जांपल यहाँ पे कर सकते हैं हम।
तो हम जब दूसरे कंपटीशन मतलब फार्म, तो वो कंपटीशन है जिसके अंदर प्रोडक्ट तो सेम होती है कंपटीटर्स की और कस्टमर भी सेम होता है मगर प्राइसेस डिफरेंट होती हैं। इट इज नोन एज द ब्रांड फार्म कंपटीशन, नॉट द ब्रांड। अब इसके एग्जांपल मैं यहाँ पे कोट करता हूँ, एप्पल फोन, एप्पल वर्सेस टेक्नो। हम कहते हैं कि ये फार्म कंपटीशन होगा, ये ब्रांड कंपटीशन नहीं होगा। तो हमने दो कंपटीशन की टाइप्स को डिस्कस किया। तो मैं वापस जा रहा हूँ अपने बोर्ड पे ऊपर, और मैं बोर्ड पे ऊपर जाके जहाँ मैंने फर्म्स की बात की थी और जहाँ मैंने ऊपर बात की थी प्रोटेक्शन शील्ड की, वहां तक वापस चला जाऊंगा। दरम्यान वाला एरिया जो है वो इसमें से आप निकल जाएगा। तो रिकॉर्डेड लेक्चर देखेंगे उसमें सारे का सारा रिवाइज हो जाएगा। लेट आई शुड टेक तो सर बंद स्क्रीनशॉट फॉर यू। मैं एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ताकि जो है वो आपके लिए ये प्रॉब्लम ना हो। मैंने एक स्क्रीनशॉट ले ली। So I'm going स्क्रीन शॉट लेने तो अच्छा रहेगा। डिले आगे चलते हैं। चलो अब हम बात कर रहे थे competition। तो नंबर 3 इज द इंडस्ट्री कॉम्पिटिटर्स। इंडस्ट्री कॉम्पिटिटर अब कौन है? अब यहाँ पे प्रोडक्ट इज डिफरेंट, प्रोडक्ट डिफरेंट है, कस्टमर भी डिफरेंट है। अगर एक एट्रीब्यूट और ऐड कर लूं शायद ज्यादा अच्छा हो। प्रोडक्ट सेम है, सर्विस सेम है, सर्विस सेम है। फॉर्म कंपटीशन में प्रोडक्ट सेम है, सर्विस सेम है और सेम कस्टमर है, प्राइस डिफरेंट है। इंडस्ट्री कंपटीशन, प्रोडक्ट डिफरेंट है, आपका कस्टमर सेम है, आपकी सर्विस बल्कि रादर कस्टमर डिफरेंट करते हैं, कस्टमर डिफरेंट है बट द सर्विस फ्रॉम द प्रोडक्ट इज सेम, सर्विस इज सेम, सर्विस सेम। ये कॉम्पिटिटर्स जिनकी प्रोडक्ट डिफरेंट है, सर्विस सेम है, कस्टमर डिफरेंट है, प्राइस भी डिफरेंट है, ये एक दूसरे के इंडस्ट्री कॉम्पिटिटर्स कहलाए। फॉर एन एग्जाम्पल, एक बाइक बनाने वाला प्रोडक्ट है बाइक, और एक गाड़ी बनाने वाला प्रोडक्ट है कार। एक तरफ बाइक है, एक तरफ कार है, प्रोडक्ट इज डिफरेंट। मोटरसाइकिल कुछ लाख का है, गाड़ी मिलियंस की है, सो प्राइस इज डिफरेंट, कस्टमर इज डिफरेंट। बिकॉज जो गाड़ी लेने वाला है वो हायर इनकम क्लास से शायद हो और जो मोटरसाइकिल लेने वाला है वो लोअर इनकम क्लास से। सो द क्लाइंट इज क्लास इज डिफरेंट बट द सर्विस ऑन द प्रोडक्ट इज सेम। दोनों सेम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये एक दूसरे के इंडस्ट्री कॉम्पिटिटर्स कहलाएंगे। दोनों का नेचर ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंट है बट नेचर ऑफ सर्विस सेम है, तो ये इंडस्ट्री कॉम्पिटिटर्स कहलाते हैं। जेनेरिक कंपिटिटर्स, अब इसके एग्जांपल अगर मैं कोट कर लूँ तो यहाँ पे होता है बाइक मेकर्स, बाइक मेकर्स वर्सेस कार मेकर्स। इसमें मैं यहाँ पे बस मेकर्स भी लिख सकता हूँ। कार मेकर्स, ये सारे के सारे ये कहलाएगा हमारा द इंडस्ट्री कंपटीशन। नंबर 4, द फोर्थ कंपटीशन इज नोन एज जेनेरिक कंपटीशन। ऑल आर डिफरेंट, ऑल डिफरेंट, ऑल डिफरेंट। हमने बेस क्या बनाया? कंपटीशन क्या है? कंपटीशन वो एक्टिविटीज जिसमें दूसरे के कस्टमर को स्नैच करते हैं। इसमें पहला कंपटीशन कहलाता है ब्रांड, दूसरा फॉर्म, तीसरा इंडस्ट्री, चौथा जेनेरिक। जब हम जेनेरिक की बात करते हैं, ऑल आर डिफरेंट, एवरीथिंग इज डिफरेंट, प्राइस इज डिफरेंट, प्रोडक्ट इज डिफरेंट, क्लाइंट इज डिफरेंट, इवन द सर्विस टाइप इज डिफरेंट। फिर कंपटीशन कैसे हो गया? उसकी एग्जांपल इस तरह से कोट करता हूँ कि आप जा रहे थे गाड़ी लेने, फॉर एग्जांपल आप सुजुकी कार लेने। आज आप जैसे सुजुकी कार लेने के लिए गए तो Zameen.com का आपने सुजुकी वर्सेस अपलॉट प्लॉट्स, आप सुबह जब उठे तो आज आप सुजुकी की गाड़ी लेने जा रहे हैं। आपने अखबार खोला तो उसके ऊपर सबसे बड़ा इश्तेहार लगा, इतना बड़ा इश्तेहार लगा था, उस पर लिखा हुआ था कि अगर आप CDA के सेक्टर XYZ में अप्लाई करते हैं तो आपको प्लॉट मिल सकता है। प्लॉट की कीमत है 5 लाख रुपए, जो इमीडिएटली 7 लाख का सेल हो सकता है फॉर एग्जाम्पल। तो आपने सोचा यार कि 5 दिन बाद कुरानदाजी है तो गाड़ी 1 हफ्ता बाद ले लेता हूँ, अप्लाई कर लेता हूँ प्लॉट के लिए, तो हो सकता है कि प्लॉट निकल आए मुझे 2 लाख का प्रॉफिट हो जाए। वो पैसे जो सुजुकी के पास जा रहे थे, वो क्लाइंट जो सुजुकी का था, वो सुजुकी को छोड़े कहाँ चला गया? प्लॉट खरीदने के वास्ते। ना प्रोडक्ट सेम है, ना प्राइस सेम है, ना कस्टमर सेम है, ना सर्विस सेम है, मगर कस्टमर स्नैच हो गया। इट इज नोन एज द जेनेरिक कंपटीशन। सो 4 तरह का कंपटीशन जो है वो एग्जिस्ट करता है। नंबर 1 ब्रांड, नंबर 2 फॉर्म, नंबर 3 इंडस्ट्री एंड नंबर 4 इज जेनेरिक। तो हम ये बात कर रहे हैं कि
इस कंपटीशन में जो 4 तरह का होता है, जो एग्जिस्ट कर रहा होता है, हमारा माइकल पोर्टर कहता है कि जब तशरीफ ले जाएं किसी इंडस्ट्री में, तो उसको ऑन द बेसिस ऑफ 5 फोर्सेस एनालाइज करना है। अगर तो आपको लगता है कि वहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है तो ज़रूर जाएं, और अगर आपको लगता है कि अपॉर्चुनिटी ज़्यादा नहीं है बल्कि थ्रेट्स ज़्यादा हैं तो ना जाएं। इवन फिर भी अगर आप जाना चाहते हैं तो आप कोशिश करें कि आप एक प्रोटेक्शन शील्ड बना के। तो माइकल पोर्टर की वो 5 फोर्सेस जिसकी बुनियाद पे उन्होंने कहा था, माइकल पोर्टर साहब ने, कि आप इंडस्ट्री को एनालाइज कीजिए, उसमें जो पहली फोर्स है, इट इज नोन एज बारगेनिंग पावर। बारगेनिंग पावर ऑफ द बायर्स। बारगेनिंग पावर ऑफ बायर्स। सेकंड वन इज द बारगेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। तीसरा था पोटेंशियल ऑफ एंट्री ऑफ a new substitute and potential of entry of new firm. Number 4 is rivalry among existing competitors. Rivalry among existing competitors. अब जो हम हर एक स्पेसिफिक कोर्स को देखेंगे, उसमें उसका मतलब क्या है, फिर हम ये देखेंगे कब ये अपॉर्चुनिटी है तो कब थ्रेट है, तो अंडरस्टैंड करें। मीन्स नंबर 1, हम सबसे पहले ये देखेंगे कि बार्गेनिंग ऑफ पावर ऑफ बायर्स फॉर एग्जांपल क्या है, कब ये बार्गेनिंग पावर ज्यादा कब कम हो सकती है, कब ये अपॉर्चुनिटी होगी कब ये थ्रेट होगी। अब हमने इस बात को एनालाइज किया। तो बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर्स क्या है? इट इज पावर ऑफ बायर्स, पावर ऑफ बायर्स power of buyers to influence selling decisions of an operator। आप एक फर्म है, आपके बेचने के डिसीजन पर अगर कोई फोर्स आपके प्रोडक्ट को बेचने के डिसीजन, या प्रोडक्ट किस प्राइस पे कहाँ बेचना है, इस पर अगर बायर असरअंदाज हो तो इसको कहेंगे कि बार्गेनिंग पावर ऑफ दी बायर। मीन्स वो आपको डिक्टेट करे कि आपने कौन सी प्रोडक्ट कब कहाँ और कैसे कितनी बेचनी है। तो बार्गेनिंग ऑफ पावर ऑफ द बायर याद रखिएगा, जब भी ज्यादा होगी, हायर इट विल बी, जब भी ये ज्यादा होगी, ज्यादा इन्फ्लुएंशियल बायर होगा, हायर दिस विल बी, एंड इफ इट विल बी लेसर इट विल बी एन अपॉर्चुनिटी। अब कब ज्यादा होगी, इट इज इंपॉर्टेंट, इसको हम अब अंडरस्टैंड करें। चलो, कब थ्रेट होगा, कब ज्यादा होगी पावर, इसको फैक्टर्स ऑफ हायर पावर डिस्कस करें। फैक्टर्स ऑफ हायर, फैक्टर्स ऑफ हायर। नंबर 1, ये तब ज्यादा होगी बायर्स आर लेसर इनकम, लेसर इनकम, जब बायर्स नंबर में बहुत कम। नंबर 2, आपकी जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट क्वालिटी इज लो, जब आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं हो, जब प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज पुअर, ना होने के मुताबिक हो, जब प्रोडक्ट की डिफरेंशिएशन जो है वो ना होने के बराबर होगी, तो आपके जो कस्टमर्स हैं, जो डिफरेंशिएशन है आपके प्रोडक्ट की यूनिकनेस है वो है ही कोई नहीं। जब आपके प्रोडक्ट की कोई डिफरेंशियल ही नहीं है तो कस्टमर आपको क्यों खरीदेगा? जब आपके प्रोडक्ट की डिफरेंशिएशन जो है, तो डिफरेंशिएशन जो है जितनी कम होगी उतना ही ज़्यादा आपका कस्टमर का जो बार्गेनिंग पावर है वो ज़्यादा होगा। सो नाउ आगे चलिए। व्हेन देयर आर
मैनी सेलर्स, जब बहुत ज्यादा सेलर्स होने के बाद तो भी कस्टमर का बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगा, बिकॉज उसके पास ऑप्शन ज्यादा मिल सकते हैं। ये मोटे मोटे केसेस लिखे हैं मैंने, है ना। व्हेन यू आर अ न्यू मेकर, जब आप एक नए मेकर हैं, तो उसके बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगी। तो अगर बायर कम होंगे, सेलर ज्यादा होंगे, प्रोडक्ट की क्वालिटी लो होगी, प्रोडक्ट की डिफरेंशिएशन पुअर होगी, आप नए मेकर हैं, ये सारी चीजें वो हैं जो कस्टमर के बार्गेनिंग पावर को ज्यादा करती हैं, और आपकी अगर सेलर कम कर देंगे। और फिर अगर मैं बात करता हूँ कि कब ये लेसर होगी, तो मैं यहाँ पर सिर्फ एक बात लिखूंगा, इट इज वाइस वर्सा, बिल्कुल अपोजिट टू द अपर केस। अब माइकल पोर्टर ने कहा था कि अगर तो आपके यहाँ ये हो तो मत जाना, और अगर ये हो तो जरूर जाना, और अगर इसके बावजूद भी जाना है, सिनेरियो में लिखा हुआ है कि आप जा रहे हैं और ये सारा कुछ वहां एग्जिस्ट कर रहा है, तो माइकल पोर्टर ने कहा था प्रोडक्ट शीट बना के जाना। प्रोडक्ट शीट से मुराद प्रोटेक्शन शीट बना के जाना। एक प्रोटेक्शन शीट वो हो सकती है जहाँ पे मैं इस वक्त यहीं पे बना दूं बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर्स के, लेकिन मैं सोचता हूँ कि प्रोटेक्शन शीट एंड पे जाके पांचों की पांचों फोर्सेस के लिए इकट्ठी बना लूँ, तो भी एक ऑप्शन है, लेकिन मैं एक में बना देता हूँ और फिर एंड पे जाके उसी में देखना होगा एडजस्टमेंट करें। तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ इट इज प्रोटेक्शन शीट। अब आपकी जो प्रोटेक्शन शील्ड है वो कैसे बनेगी? प्रोटेक्शन शील्ड, इसकी अगेंस्ट प्रोटेक्शन शील्ड बनेगी, मीन्स अगर थ्रेट हो और आपने फिर भी जाना हो तो आप क्या करें? प्रोटेक्शन शील्ड, प्रोटेक्शन शील्ड नंबर वन, पहली चीज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अपनी प्रोडक्ट को बाकियों से डिफरेंट, अपनी प्रोडक्ट को बाकियों से डिफरेंट बना, यूनिक एट्रीब्यूट्स को ऐड करें, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स बहुत ज्यादा होनी चाहिए, प्रोडक्ट क्वालिटी शुड बी वेरी हाई, प्रोडक्ट क्वालिटी शुड बी हाई। मैं बात को वहीं पे लेके जा रहा हूँ, प्रोडक्ट क्वालिटी शुड बी हाई, शुड बी हायर, शुड बी हायर, बहुत हाई प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल टॉक अबाउट माइकल पोर्टर वैल्यू चेन मॉडल, जितनी भी सेकेंडरी एक्टिविटीज थी वो सारी की सारी वैल्यू ही तो ऐड कर देंगे, और वो सारी की सारी अगर प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल हो सकती है। सो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट क्वालिटी, एंड देन आप अपने कॉम्पिटिशन मर्जर्स करें, एक्विजिशंस, एक्विजिशंस, आप अपने कंपटीटर्स की एक्विजिशंस करें, आप जॉइंट वेंचर्स करें, तो उससे क्या होगा? आप लोग सेलर्स कम होते जाएंगे, बायर्स बढ़ते जाएंगे, और ये पावर रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। सो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट क्वालिटी, and mergers, acquisitions, and then even the product development, आप प्रोडक्ट पर रुके ना, आप अपनी नई प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कराते रहें। प्रोडक्ट development can be another option. So it is what all is known as the protection sheet. Even हम कह सकते हैं प्रोडक्ट गुडविल, प्रोडक्ट गुडविल आप उसकी मार्केटिंग करें बहुत ज़्यादा, ताकि लोग जो हैं वो प्रोडक्ट से वाकिफ रहें और लोगों को पता हो कि आप एक बड़ा यूनिक ब्रांड है, और इस तरह से आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी जो ओवरऑल इमेज है वो बेहतर हो सकता है, और आपकी जो कस्टमर की बार्गेनिंग पावर है वो कम हो सकती है। ऑल आर द फैक्टर्स ऑफ हायर पावर, लोअर पावर, एंड व्हाट इज द प्रोटेक्शन शीट। अब जब हम बात करते हैं बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर्स की, तो दूसरी पावर थी बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर्स। अब मैं सप्लायर्स को यहाँ पे फिट कर, बार्ग पावर ऑफ द सप्लायर्स, अब यहाँ पे बायर्स की जगह हम कर देंगे सप्लायर। सप्लायर से मुराद है सप्लायर ऑफ द रॉ मटेरियल, जो आपको आपकी इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में सपोर्ट कर रहा है। तो पावर ऑफ द सप्लायर्स टू इन्फ्लुएंस द सेलिंग डिसीजन ऑफ एन ऑपरेटर, ये थ्रेड कब होगा? जब ये हाई होगा। जब बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर ज्यादा होगा तो ये थ्रेट है, जब वो कम होगा तो वो अपॉर्चुनिटी है, जैसे पहली फोर्स में था वैसे इस फोर्स में भी है। फैक्टर्स ऑफ हायर पावर, कब ये बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगी? व्हेन सप्लायर्स आर लेसर इन नंबर, लेसर इन नंबर, जब सप्लायर कम है नंबर। नंबर टू, यूनिक प्रोडक्ट, आपके सप्लायर की जो प्रोडक्ट है ना वो यूनिक है। सप्लायर की प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन इज स्ट्रोंगर, बहुत स्ट्रॉन्ग डिफरेंशिएशन है प्रोडक्ट, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिफरेंशिएशन। एंड देन इट इज लो प्राइस, अगर उसकी प्राइस बाकियों से कम है तो ये सारे का सारा उसकी पावर को बढ़ाएगा। एंड पोटेंशियल उसका टू फॉरवर्डली इंटीग्रेट, इंटीग्रेट जो काम आप कर रहे हैं ना बनाने का, आपका सप्लायर
इस काबिल है, वो थोड़े से पैसे लगाए और वो खुद उस काम में आ जाए जो आप कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप मेकर हो, वो थोड़े से पैसे लगा के मेकिंग में आ जाए और वो खुद ही बनाना भी शुरू कर दे। रॉ मटेरियल तो वैसे ही उसका अपना, हम कहते हैं कि उसका फॉरवर्ड आगे जाना, यानी कि अगर एक रॉ मटेरियल प्रोवाइडर मेकिंग में आएगा तो ये फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। अब मेकर सेलिंग में जाएगा तो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, अगर सेलर मेकिंग में आएगा तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन है। मेकर सप्लाई में जाएगा, सप्लाई ऑफ मटेरियल की सप्लाई में, तो नोन एज बैकवर्ड इंटीग्रेशन। ये अगर वो फॉरवर्डली इंटीग्रेट करने का पोटेंशियल ज्यादा है उसका, तो बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर ज्यादा होगी। अगेन प्रोटेक्शन शीट विल रिमेन द सेम। एंड प्रोटेक्शन शीट मैंने डिजाइन ही ऐसे करता हूँ कि आपको बार बार चीजें जो है नए सिरे से याद ना करनी पड़े। नंबर वन, आपकी प्रोडक्ट डिफरेंट होगी, आपके बायर ज्यादा होंगे, आपके बायर ज्यादा होंगे तो आप बड़े मेकर होंगे, बड़े मेकर होंगे तो इस सप्लायर के आप मेजर क्लाइंट भी होंगे। जब आप मेजर क्लाइंट होंगे ना, तो आपकी बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगी, ऑटोमेटिकली खुद ही काम होना शुरू हो जाएगी। आप आपकी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन आपको सेल्स देगी और आप फिर इसके यूनिक कस्टमर बनेंगे। आपकी हाई प्रोडक्ट क्वालिटी, मर्चेज एक्विजिशन, जॉइंट वेंचर, प्रोडक्ट प्लेसमेंट, गुडविल, ये सारे चीजें ऐड करेंगी बार्गेनिंग पावर को लो करने में आपके सप्लायर। And the third power that was identified by, so it was the second one. The third power that was identified by Michael Porter, it was the potential. It is the potential of the potential of entry of a new firm. Potential of the entry of a new firm. अगर पोटेंशियल ऑफ द एंट्री ऑफ न्यू फर्म की बात करें तो अगेन जब भी याद रखिएगा, ये फोर्सेस ऊपर को होंगी तो ये थ्रेट है, नीचे को होंगी तो कम। जब भी पोटेंशियल ज्यादा होगा ये थ्रेट है, पोटेंशियल कम होगा तो ये अगेन एक अपॉर्चुनिटी है। इसलिए मैं उन हायर होगा तो थ्रेट है उसको चेंज नहीं कर रहा, मैं एक ही कॉन्सेप्ट को रिफाइन करके इन्फोर्स कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो पावर ऑफ, अब यहाँ गया पोटेंशियल एंट्री ऑफ न्यू फर्म, तो यहाँ पे हम लिखते हैं चांसेस, चांसेस दैट a new substitute product will arrive। इस बात का चांस है नए प्रोडक्ट, नए सब्सिट्यूट प्रोडक्ट आ जाएगा। जैसे आप प्रोडक्ट बना रहे हो उस साथ की प्रोडक्ट आ जाएगी। हायर होगा तो थ्रेट है। कब ये फैक्टर हायर होगा? जब आपके सिमिलर टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी अवेलेबिलिटी, जब वही टेक्नोलॉजी हर जगह अवेलेबल होगी जिससे आप प्रोडक्ट बना रहे हैं। नंबर टू, इक्वल साइज मेकर्स। आपके सारे के सारे आप जो फॉर्म ऑपरेट कर रहे हैं उनका साइज तकरीबन सेम है, कोई छोटा बड़ा नहीं है और सारे ही बड़े वेल्दी हैं। नंबर थ्री, लो कस्टमर चॉइस। लो कस्टमर चॉइस, कस्टमर की कोई चॉइस ही नहीं है, इसका मतलब है लो ब्रांड प्रायोरिटी। लो ब्रांड प्रियोरिटी, आप गए हैं कोक लेने, आपको नहीं मिली, आप पेप्सी लेके आ गए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कोक है या पेप्सी है, तो इसको कहते हैं लो ब्रांड प्रायोरिटी। कस्टमर के अंदर कोई ब्रांड प्रायोरिटी नहीं है उस इंडस्ट्री के जिसमें आप ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये आपको पोटेंशियल ऑफ एंट्री ऑफ न्यू सब्सटीट्यूट करूँगा यहाँ पे मैं, कम नहीं, न्यू सब्सटीट्यूट और यहाँ पे मैं करूँगा नंबर, तो नया सब्सटीट्यूट जो है वो हायर। सो ना ये सारे के सारे जो है ना वो फैक्टर्स हैं हायर पावर। तो अगर आपने इनको लो करना है इस स्पेसिफिक पावर को, तो अगेन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, आपका कस्टमर लॉयल होगा, प्रोडक्ट क्वालिटी हायर करेंगे तो ब्रांड गुडविल बढ़ाएगा, मर्जर एक्विजिशन, जॉइंट वेंचर्स, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, गुडविल डेवलपमेंट, दीज ऑल आर अगेन द सॉल्व ऑफ सिमिलर फैक्टर्स जो बाकी फोर्सेज में भी आपकी हेल्प करेंगे इंशाल्लाह। मैं कोशिश करता हूँ कि प्रोटेक्शन शीट ऐसी डिज़ाइन करूँ, यहाँ पे लिखूँ और बताऊँ और समझाऊँ तो बार बार इसको चेंज ना करना पड़े, ताकि आपको 50 चीज़ें याद ना करनी हो, बल्कि शायद आप 2-4 से ही या 3-4 से भी अच्छा गुजारा करें। So now the next power was the potential of the entry of a new firm। अब प्रोडक्ट नहीं आ रही बल्कि पूरी की पूरी फर्म ही तशरीफ ला रही है, तो अब ये क्या हुआ, इसको कहेंगे क्या, चांसेस दैट अ न्यू फर्म विल अराइव। पहले तो उसकी एक प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग की प्रोडक्ट आया, पूरी पूरी फर्म आ रही है। पहले तो एग्जिस्टिंग कंपटीटर्स में से किसी ने आपकी जैसी प्रोडक्ट बना ली, अब पूरी की पूरी फर्म ही नहीं आ रही है। पहले 2 कंपनी से अब 3 हो गई हैं, पहले 2 कॉलेजेस से अब 6 हो गए, पहले 5 कॉलेजेस से अब 6 भी आ गया। तो इट इज व्हाट चांसेस ऑफ अ न्यू फर्म, कि जब भी ज्यादा होगा थ्रेट है, जब भी कम होगा ये अपॉर्चुनिटी है।
तो फैक्टर्स ऑफ द हायर पावर, कब इसके चांसेस ज्यादा होंगे कि एक नई फर्म आ जाएगी? हाई हाई प्रॉफिट्स, आपकी इंडस्ट्री के जो प्रॉफिट्स हैं इन इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री के प्रॉफिट्स बहुत हाई हैं, और कंपटीटर्स को पता है कि हम भी चले जाएंगे, कोई खा के आ जाएंगे हम भी, आप अकेले क्यों खाएं? सो हाई प्रॉफिट्स इन द इंडस्ट्री, हाई ग्रोथ। आपकी इंडस्ट्री ऐसी है जिसके अंदर जो ग्रोथ है एनुअली वो 10%, 15% हर साल इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है। अब जब बढ़ती जा रही है, समझ दिया कि नए कस्टमर्स मिल रहे हैं, तरक्की हो रही है ओवरऑल इंडस्ट्री के अंदर, तो ये कहलाता है हाई ग्रोथ इंडस्ट्री। तो हाई ग्रोथ इंडस्ट्री होगी तो उसमें भी पोटेंशियल ऑफ एंट्री ऑफ न्यू फर्म जो है वो ज्यादा होंगे। वीक लेजिस्लेशंस, वीक लॉज, आप जिस मुल्क में काम कर रहे हैं उसके लॉज भी बड़े कमजोर हैं, कोई कॉपीराइट प्रोटेक्शन नहीं है, कोई आपके यहाँ जो है वो कॉपीराइट प्रोटेक्शन के अलावा पेटेंट प्रोटेक्शन का सिस्टम नहीं है। तो आ भी जाता है, कोई पूछने वाला नहीं है आप कौन है, कहाँ से, कब आए और वजह क्या है आने की, नोबडी इज आस्किंग दिस थिंग। ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं, ये आपके जो चांसेस हैं, जो पोटेंशियल है एंट्री का ऑफ अ न्यू फर्म, उसको बढ़ा देते हैं। आगे चलिएगा जनाब, हम अब एक कदम आगे जाएंगे। मैं ज़्यादा चीज़ों को स्ट्रेसफुल नहीं कर रहा, बिकॉज वी आर नॉट टू रिप्रोड्यूस द नॉलेज इन एग्जाम एन एस पी, पर वी शुड बी नोन टू, अगर ये आता है तो क्या होगा, अगर ऐसी कंडीशन आती है तो हमें क्या करना है। तो मैं प्रोटेक्शन शील्ड पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। सो पोटेंशियल ऑफ एंट्री ऑफ न्यू फर्म के बाद था राय वैल्यू। अमाउंट एग्जिस्टिंग, राय वैल्यू अमंग एग्जिस्टिंग फर्म्स, मौजूदा फर्म्स के दरमियान जो तनाव है, जो वो कैसा है। तो राय वैल्यू अमंग एग्जिस्टिंग फर्म्स का मतलब क्या है, मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ। द नेचर ऑफ स्टिफनेस, स्टिफनेस ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन कितना स्टिफ है। स्टिफ से मुराद है ताकतवर है। आपके दो तरह के कंपटीशन होते हैं, एक कंपटीशन में आपके बनाने वाले लड़ रहे होते हैं प्राइस और क्वालिटी पर, कोई प्रॉब्लम नहीं, सारे यही लगे, कस्टमर प्रेफर करेगा उस प्रोडक्ट को जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी और प्राइस लो होगी। मगर स्टिफनेस ऑफ कंपटीशन का मतलब है कि आप सिर्फ प्राइस पे मुकाबला नहीं कर रहे, बल्कि आपकी ये कोशिश है कि दूसरे कंपटीटर की शॉप्स को हम टेकअप कर लें, उसके बाद शॉप्स ही ना हो बेचने के लिए। वाल्स वर्सेस कोका, कोक वर्सेस पेप्सी या पेप्सी वर्सेस कोक, हम बंदे रख लें, इनकी बोतलें ही तोड़ते रहें ताकि इनका जो है ना वो कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ता रह जाए, और ये फर्म जो है ना वही खत्म हो जाए, जिसपाइट हम इससे कस्टमर को तोड़े, हम फर्म को ही खत्म करने की कोशिश करते हैं। दैट इज व्हाट नोन एज द स्टिफनेस ऑफ द कंपटीशन। जब भी ये हाई होगा ये एक थ्रेट है, और जब भी ये लो होगा ये एक अपॉर्चुनिटी। तो कब होगा आपका कंपटीशन के अंदर रेवेन्यू ज्यादा? फैक्टर्स ऑफ हायर पावर। नंबर वन, इक्वल साइज, इक्वल साइज फर्म्स, जब फर्म्स के साइजेस इक्वल होंगे। नंबर टू, लो ग्रोथ, लो ग्रोथ इन इंडस्ट्री, आपकी इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ ही नहीं है, आपकी इंडस्ट्री जो है ना वो एनुअली सिर्फ 2%, 3%, 5% से ऊपर जा रही है, तो ये एक लो ग्रोथ इंडस्ट्री कहलाती है। तो लगता ही है कि अगर मैं दूसरे को नहीं मारूंगा तो मैं खुद मारा जाऊंगा। डिक्लाइनिंग, डिक्लाइनिंग प्रॉफिट, आपके प्रॉफिट गिर रहे हैं। अब अगर आप दूसरे को छोड़ेंगे तो आप खुद मरना के लिए तैयार हो जाए। तो इट इज डिक्लाइनिंग प्रॉफिट इन द इंडस्ट्री, तो राइवलरी ज्यादा होगी। हायर इंफ्रास्ट्रक्चर कास्ट, हायर इंफ्रास्ट्रक्चर, आपने इतना पैसा लगाया हुआ है कि आप इंडस्ट्री को छोड़ के जा ही नहीं सकते, और अपने कंपटीटर्स को इसे मारने की कोशिश करते हैं कि अगर ये हुआ और अगर इसने मुझे ले लिया तो मैं कहाँ जाऊंगा, कुछ बिलियंस की इन्वेस्टमेंट हुई है। तो ये जब हायर इंफ्रास्ट्रक्चर कास्ट होती है तब भी रेवेन्यू ज्यादा होती है, यानी कोर्स द वी क्लास दे प्ले अनदर वाइटल रोल, वी क्लास और दे प्ले अनदर वाइटल रोल। तो इट इज व्हाट नोन एज द राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग फर्म्स। एंड इसके नीचे जो है वो दी हुई है हमारी प्रोटेक्शन शील्ड। कब ये कम होगी? जब प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होगी, कस्टमर्स लॉयल होंगे, प्रोडक्ट क्वालिटी को अच्छी होगी, मर्जर एक्विजिशन जॉइंट वेंचर, ये सारे की सारी प्रोटेक्शन शील्ड रिमेन सेम इवन इन केस ऑफ द रेवेन्यू अमंग एग्जिस्टिंग फर्म्स। मुझे कहते हैं एक साहब एक दिन के, यहाँ पे आप ये क्यों नहीं लिखते प्रोटेक्शन शील्ड में बेटर गवर्नमेंट लॉज, वो आपके इख्तियार में नहीं भाई। आप तो वो आप तो ये डिस्कस कर रहे हैं कि क्या हो और जाऊं, क्या हो और ना जाऊं, तो गवर्नमेंट आपके मतहत तो नहीं। सो दैट इज एन एक्सटर्नल वेरिएबल, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। सो इसे कोई भी सजेशन रिगार्डिंग द लॉ विल बी अ वेरी पुअर सजेशन टू बी टेकन बाय अ बिजनेसमैन। सो एग्जाम में इस बात का हमने ख्याल करना है। तो आपका जो सवाल है मैं उसको आंसर करता हूँ।
फिर मैं आगे प्रोसीड करूँ। ये आगे चलेंगे. So now we are going for the environmental analysis, and in that we are going to discuss the Pestel model. Pestel model. अब Pestel model की तरफ हम जा रहे हैं. So Pestel model, and what Pestel model actually is, what it is actually the Pestel model is the model that is all about the Pestel model, और इसके अंदर हम वर्ड यूज करते हैं Pestel analysis, तो शायद ज्यादा बेहतर और क्विक अंडरस्टैंडिंग हो जाए. Pestel analysis. अब Pestel क्या है? Political, economic, technological, legal and ecological factor. Political, economic, social, technological, legal and ecological environment factor analysis है. अब इससे हम क्या कर रहे हैं? इससे हम कर क्या रहे हैं? अभी जो हमारा 5 फोर्सेस है ये हो गया खत्म. हम इसकी जगह पे इंसर्ट करते हैं अब पेस्टल मॉडल को, ताकि हम उसको बेहतर अंडरस्टैंड कर सकें. याद रखिए, पेस्टल मॉडल इज बेसिकली द मॉडल ऑन विच योर बिजनेस इन्वायरमेंट इज माउंटेड. इसके ऊपर बेस कर रहा होता है, इसके ऊपर माउंट हुआ हुआ होता है आपका जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो. जब हम बात करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के माउंट होने की, इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट. अभी मैं बात करेंगे पेस्टल मॉडल की, तो याद रखिएगा पेस्टल मॉडल की बात जब हम करते हैं तो बेसिकली एनालिसिस के लिए बात करते हैं, ताकि हम उसको भी एनालाइज करें. अगेन क्यों? बिकॉज ये हमें या तो देगा स्ट्रेंथ्स और या ये देगा वीकनेस, और कुछ किसी चीज तो इससे आनी. जो फैक्टर्स हैं जिनको हमने कंसिडर करना है, दो फैक्टर्स आर नंबर 1 पॉलिटिकल फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर. Number 2 is the economic. Number 3 social. Number 4 technological. Number legal. And number 6 is ecological. ये हमारे जो है वो पेस्टल एनालिसिस के अंदर ये 6 फैक्टर हैं जिसको हम एनालाइज करें. मैंने कहा था कि पेस्टल इज टोटली अनकंट्रोलेबल, तो इट इज अ एक्सटर्नल एनालिसिस. एंड जब हम बात करते हैं पेस्टल की, तो हमें या तो ये स्ट्रेंथ देगा या तो वीकनेस देगा. सो पॉलिटिकल फैक्टर में 3 चीजों को देखा जाता है. नंबर 1 गवर्नमेंट स्टेबिलिटी, गवर्नमेंट स्टेबिलिटी. नंबर 2 परसिस्टेंस, परसिस्टेंस क्या मतलब? परसिस्टेंस कंटिन्यूटी ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, कितनी परसिस्टेंट चल, कितनी परसिस्टेंट लगातार चल रही, परसिस्टेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज. आगे चलिए, टैक्सेशन मॉडल. गवर्नमेंट का टैक्सेशन मॉडल क्या है? थीम ऑफ गवर्नमेंट, थीम ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट करना क्या चाहे? 2 तरह की गवर्नमेंट्स होती हैं, यहीं पे लिख दूं बाद में कंफ्यूजन ना हो. वन इज नोन एज सोशल, सोशल. सेकंड गवर्नमेंट इज नोन एज इकोनॉमिक. 2 तरह की गवर्नमेंट्स की थीम होती हैं, एक सोशल और एक इकोनॉमिक थीम होती है. मैं ज्यादा लंबा नहीं खींच रहा इसको, ठीक है जी. और इसके बाद इसकी है जो गवर्नमेंट की बिजनेस पॉलिसी. बिजनेस पॉलिसी, बिजनेस पॉलिसी से मुराद क्या है? इंपोर्ट बेस्ड है, इंपोर्ट ओरिएंटेड है, या या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड? बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कंसिडर करना. तो अब हम जा रहे हैं इस फैक्टर को डिस्कस करने के वास्ते. पॉलिटिकल फैक्टर के अंदर हमने डिस्कस किया है गवर्नमेंट स्टेबिलिटी को. अब अपने जहन में रखिए, गवर्नमेंट स्टेबिलिटी से मुराद है गवर्नमेंट आती है और कितना अरसा रहती है. अगर तो गवर्नमेंट रहेगी फॉर लॉन्ग टाइम, तो पॉलिसीज भी होंगी लॉन्ग टर्म. ये दोनों इंटर रिलेटेड फैक्टर्स भी हो सकते हैं. जब गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म के लिए आएगी तो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज होंगी. इसका मतलब ये है कि आप जो फर्म के ऑनर हैं वो भी लॉन्ग टर्म के लिए अपनी प्लानिंग करेंगे. सो ज्यादा वक्त आपका स्पेंड होगा प्लानिंग पे, नहीं ज्यादा वक्त स्पेंड होगा इम्प्लीमेंटेशन पे. कम वक्त लगाना पड़ेगा आपको और आपके एम्प्लॉइज को ऑन द प्लानिंग. दिस विल टर्न इनटू एन अपॉर्चुनिटी. ये एक अपॉर्चुनिटी बन जाए.
और अगर गवर्नमेंट जो है वो स्टेबल नहीं है, उसकी पॉलिसीज लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, तो यू विल बी इन अ थ्रेट एज वेल, बिकॉज आप लॉन्ग टर्म के लिए प्लान नहीं कर सकते। आपके ज़्यादा रिसोर्सेज प्लानिंग में ज़ाया हो जाएंगे और कम इम्प्लीमेंटेशन में लगेंगे, जिसकी वजह से आपका बिजनेस जो है वो डिटेरियोरेट हो जाएगा। टैक्सेशन मॉडल, अगर गवर्नमेंट जो है वो टैक्स ओरिएंटेड है, सेल्स पे भी टैक्स, होल्ड विद होल्डिंग भी टैक्स, प्रोडक्ट की सेल्स पे भी टैक्स, then with raw material will be tax, inventory will be tax, implies the salary will be tax. So if there is taxation model is very strict, this will be a threat for you, because आए दिन आपका प्रॉफिट कम होता रहेगा। एंड यहाँ पे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, कंज्यूमरिज्म। कंज्यूमरिज्म भी पॉलिटिकल फैक्टर्स का ही हिस्सा है। कंज्यूमरिज्म, गवर्नमेंट सेट्स द प्राइसेस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। अगर गवर्नमेंट सेट करेगी, याद रखिएगा थ्रेट होगा। ये जो सस्ती रोटी पाकिस्तान में है, ये 2 रुपए की रोटी में सारे तंदूर बंद हो गए, आधे तंदूर बंद हो गए। व्हाट इज द रीजन ऑफ इट? बिकॉज आपके जो बिजनेसमैन है उसको पता है ना कि मेरा ब्रेक इवन कितना है। अगर ब्रेक इवन से कम पे जाके बेचना पड़े तो हु वुड लाइक टू सेल द प्रोडक्ट ऑन द लेसर देन ब्रेक इवन? कोई भी नहीं करना चाहता। तो ये कंज्यूमरिज्म जो है वो, गवर्नमेंट सेट्स द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये भी एक थ्रेट है। सो आगे चले, थीम ऑफ द गवर्नमेंट सोशल। गवर्नमेंट जितने भी काम करी वो सारे सोशल प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करने के लिए, ये नहीं कि उनके लिए कंसिडरेशन बिजनेस नहीं है, उनके लिए कंसिडरेशन ह्यूमन लिविंग इन द सोसाइटी है। सो दे आर ट्राइंग टू मेक अ वेलफेयर स्टेट। बिजनेस के लिए थ्रेट हो, तो ये वेलफेयर स्टेट बनाएगी, तो उसका मतलब गवर्नमेंट के सारे पैसे वेलफेयर स्टेट की डेवलपमेंट के लिए लगेंगे, बिजनेस की डेवलपमेंट के लिए नहीं। सो दे विल चार्ज बिजनेस एंड दे विल स्पेंड ऑन द ह्यूमन, तो दिस विल बी अ थ्रेट फॉर अ कारोबारी पर्सन। इकोनॉमिक थीम है अगर उसकी, तो बिजनेस डेवलप करेंगे, बाहर से नई इन्वेस्टमेंट्स लाएंगे, ओवरऑल एम्प्लॉयमेंटेबिलिटी और लोगों की स्किल्स बढ़ेंगी, एंड दिस विल बी अ बिजनेस, आई मीन बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी। बिजनेस पॉलिसी, इंपोर्ट ओरिएंटेड गवर्नमेंट है तो तैयार रही है, कॉम्पिटिटर्स हर दूसरे दिन बढ़ते जाएंगे। अभी हमने पढ़ा था पोटेंशियल ऑफ एंट्री ऑफ अ न्यू फर्म, तो जितना गवर्नमेंट इंपोर्ट ओरिएंटेड होगी, हर चौथे दिन एक नया सब्सिट्यूट आया होगा और हर 10वें दिन एक नई फर्म भी आई होगी। तो दिस विल बी नोन एज द इंपोर्ट ओरिएंटेड गवर्नमेंट एंड दिस विल बी अ थ्रेट। अगर गवर्नमेंट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, सारी एक्सपोर्ट्स करेगी, आपकी सपोर्ट करेगी आपकी सेल बढ़ाने के लिए, प्रोडक्ट को बाहर भेजने के लिए, दिस विल बी अपॉर्चुनिटी फॉर अ बिजनेस। तो ये है कुछ चीज़ें जिनको हमें पॉलिटिकल फैक्टर में देखना होगा। इनमें से कोई भी एडवर्सिटी हो एग्जाम के सिनेरियो में, दैट विल बी अ थ्रेट, और कोई भी सिमिलर चीज़ हो जो इसके एडवर्सिटी में ना चला जाए बल्कि फेवर में चला जाए, दैट विल बी एन अपॉर्चुनिटी। इकोनॉमिक फैक्टर की बात करेंगे कि इकोनॉमिक फैक्टर के अंदर हम जो चीज़ डिस्कस करते हैं, दैट इज नोन एज इन्फ्लेशन रेट। नंबर 2, टैक्स रेट। नंबर 3 is the interest rate. Number 4, employment rate. Employment rate. Purchasing power. Percentage. Purchasing power percentage. हम 2 4 5 चीजों को डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको एक आइडिया हो। अगर इन्फ्लेशन रेट आपकी इकोनॉमी में है अप टिल 10%, दैट इज अ मार्वेलस अपॉर्चुनिटी। रीजन ये है कि जब कारोबार की प्राइसेस ऊपर जा रही होती है तो प्रॉफिट बढ़ता है। जब जब प्रॉफिट बढ़ता रहेगा, दिस विल बी अ सॉर्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी, एंड जो है ना वो पीपल विल फील दैट, जो है ना वो बिजनेसमैन विल फील दैट उन्हें और पैसा डालना चाहिए ताकि वो अपने प्रॉफिट्स को एंजॉय कर सके। तो नाउ अब हम पहुंचते हैं इकोनॉमिक फैक्टर पे। इकोनॉमिक फैक्टर में वी डिस्कस द इन्फ्लेशन रेट, एंड इन्फ्लेशन रेट मींस, अगर मैं कह रहा था कि 10% तक होगा तो वेरी मोटिवेशनल फॉर द बिजनेसमैन। अगर ये 10% तक हो तो कंज्यूमर भी कोई फर्क नहीं डालता, कंज्यूमर को कोई फर्क नहीं पड़ता, जब वो 100 रुपीज की ले लेता है वो 110 की भी ले लेता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर 10 से ऊपर जाना शुरू हो जाएगा ना, तो कंज्यूमर की चॉइस या उसकी परचेजिंग पावर हर्ट होनी शुरू हो जाएगी। परचेजिंग पावर हर्ट होगी तो वो नहीं खरीदेगा, जब वो नहीं खरीदेगा तो आपका बिजनेस डिस्ट्रक्ट होगा और ये थ्रेट बन जाएगा, इन्फ्लेशन। नंबर 2 इज द टैक्स रेट, लोअर अपॉर्चुनिटी हायर थ्रेट। इंटरेस्ट रेट, लोअर अपॉर्चुनिटी हायर थ्रेट। एम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा तो जॉब के कॉन्टेक्स्ट में, लेबर के कॉन्टेक्स्ट में थ्रेट होगा, बिकॉज लेबर का वेज रेट बढ़ जाएगा। मगर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द परचेजिंग पावर ये अपॉर्चुनिटी होगी। सो एक टाइम पे ये दो काम कर रहा होगा। एम्प्लॉयमेंट रेट अगर आपकी सोसाइटी में ज्यादा है तो लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो बेहतर होगी, उस साइड से ये आपका अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। परचेजिंग पावर परसेंटेज, लोग ज्यादा इनकम लेंगे, ज्यादा पैसा होगा, डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा होगी, ये अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। और अगर एम्प्लॉयमेंट रेट कम होगा
ये भी कम हो जाएगी और ये एक थ्रेट बन जाएगा। ये बिजनेस साइड है सेल्स की। मगर अगर आप लेबर साइड से देखें तो एम्प्लॉयमेंट रेट जितना ज्यादा होगा उतना ही आपके लिए थ्रेट बनेगा, बिकॉज लेबर का जो डिमांड्स होंगी फॉर द वेज रेट वो भी बढ़ जाएगा एंड टर्निंग टू अ थ्रेट। सो इसको एक एंगल लेबर का देखना है, इसमें एक एंगल आपने देखना है अपनी प्रोडक्ट सेल्स का। तो दोनों सूत्रों को आपको देखना और कंपैरिजन करके एग्जाम में चलना होगा। दिस इज व्हाट नोन एज इकोनॉमिक फैक्टर और इसकी थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। नंबर 3 इज द सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर में हम किन चीजों को देखा? सोशल फैक्टर में हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ सोशल फैक्टर नंबर 1 फैमिली लाइफ स्टाइल है। फैमिली लाइफ स्टाइल, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम थ्रेट है, इंडिविजुअल फैमिली सिस्टम अपॉर्चुनिटी। क्योंकि जितनी फैमिलीज इंडिपेंडेंट होती जाएंगी उतना ही डिमांड मार्केट में बढ़ती जाएगी हर एक चीज की, घर की हर चीज से लेके बाहर की हर चीज तक डिमांड बढ़ती चली जाए। सो फैमिली लाइफ स्टाइल इज नंबर 1 दैट वी लुक इनटू। नंबर 2 हम देखते हैं ट्रेंड्स, ट्रेंड्स इन फैशंस। अगर आपकी जो सोसाइटी है वो जल्दी जल्दी फैशंस को अडॉप्ट करती है और बहुत फ्रीक्वेंट ट्रेंड्स चेंज होते हैं, तो ट्रेंड्स एंड फैशंस के फ्रीक्वेंटली बदलने से आपकी प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल नीचे चला जाएगा, वो आपका थ्रेड बन जाएगा। कॉस्ट रिकवर नहीं होगी, नई प्रोडक्ट बनानी पड़ जाएगी। पर अगर ट्रेंड एंड फैशन लॉन्ग टर्म चलते हैं तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी आपके लिए और आप बड़े आराम से अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को रिकवर कर सकते। नंबर 3 इज लिटरेसी रेट। लोग कितने पढ़े लिखे हैं? लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट। सो लिटरेसी रेट, जितने लोग ज्यादा पढ़े लिखे होंगे उतना ज्यादा अपॉर्चुनिटी होगी। वजह क्या है? वो एम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा होगा, एम्प्लॉयमेंट रेट के ज्यादा होने से उनकी परचेजिंग पावर ज्यादा होगी, परचेजिंग पावर के ज्यादा होने से आपकी जो प्रोडक्ट सेल्स है वो बढ़ सकती है। और इस तरह से हम कहते हैं कि हमारा लिटरेसी रेट जो है वो एक अपॉर्चुनिटी है और लिटरेसी रेट का कम होना इज अ थ्रेट फॉर अस। आगे चलिएगा, हम जो अगली चीज देखते हैं वो है हमारी सोशल मूवमेंट्स। सोशल मूवमेंट्स, अगर आपके यहाँ शहरों से देहातों में और देहातों से शहरों में मूवमेंट्स बहुत ज्यादा है, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, बिकॉज उतने ही ट्रेंड्स एंड फैशन सिमिलर होंगे। जब ट्रेंड एंड फैशन सिमिलर होंगे तो आपकी प्रोडक्ट की सेल्स जो है वो बढ़ जाएंगी और इकोनॉमी ऑफ स्केल अचीव हो जाएगी। इकोनॉमी ऑफ स्केल के अचीव होने से होगा क्या? इकोनॉमी ऑफ स्केल के अचीव होने से आपका ओवरऑल जो है प्रोडक्ट का सेल उसकी उसमें प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। सो इस तरह से हम अगर सोशल मूवमेंट ज्यादा हैं तो इकोनॉमी ऑफ स्केल अचीव कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट मेकिंग के लिए। बिकॉज जब ट्रेंड्स फैशन सिमिलर होंगे, चॉइसेस सिमिलर होंगी देहातों की शहरों की, तो उससे होगा ये कि आपका मेकर मेगा क्वांटिटी में बनाएगा और उसकी लेबर कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, वो मार्जिनल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर में हम डिस्कस करते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी रेडिली अवेलेबल है हर एक के लिए थ्रेट बन जाएगा। अगर टेक्नोलॉजी यूनिक है और कम अवेलेबल है तो वो एक अपॉर्चुनिटी है, आप लॉन्ग टर्म में चल सकते हैं। मगर अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट स्पेंडिंग टेक्नोलॉजी के अंदर ज्यादा है, ये अपॉर्चुनिटी है, सब्जेक्टेड टू द स्पीड ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो है वो कंट्रोल्ड हो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। अब इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा ट्रांसफर। तो नाउ अब देखिएगा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज्यादा है तो इन हाउस टेक्नोलॉजी मिलेगी तो टेक्नोलॉजी सस्ती होगी, ये अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, आप आराम से प्रोडक्ट को डेवलप कर सकते हैं कम इन्वेस्टमेंट के साथ। मगर अगर ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की स्पीड भी ज्यादा है तो हर चौथे दिन आपकी प्रोडक्ट का सब्सिट्यूट आया होगा, क्योंकि सारे कॉम्पिटिटर्स इस टेक्नोलॉजी को एक्वायर कर लेंगे। अगर सारे इस टेक्नोलॉजी को एक्वायर कर लेंगे तो आपकी प्रोडक्ट की कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगी। मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल इस तरह से कोट करता हूँ, मोबाइल एक जमाने में पाकिस्तान का सबसे बड़ा मोबाइल फोन प्रोवाइडर था और मोटर पे उन्हीं के सिग्नल चला करते थे और उन्हीं को लोग खरीदा करते थे, बड़ी डिमांड थी उसकी। मगर जब जल्जिला आया 2008 में, तो ये 2007 में या 2005 में, 2005 में जब जल्जिला आया तो उस जल्जिले की वजह से रिहेबिलिटेशन के टाइम पे सारे सर्विस प्रोवाइडर्स को यह काम जारी हुआ सरकार की तरफ से कि सारों के सारे जो बूस्टर्स हैं वो सारे मोबाइल फोन सर्विस प्रोवाइडर्स को सिग्नल्स देंगे। तो हुआ क्या? मोबाइल लिंक जो जगह जगह करिया करिया गांव गांव था और यूनिक था, अब उसके खंभे सारे सर्विसेज वाले यूज कर रहे थे। तो हुआ क्या? फिर लो पैकेजेस एंड चीप पैकेजेस वाले मोबाइल फोन्स जो है मोबाइल सर्विसेज बिकना शुरू हो गए और मोबाइल लिंक जिसका सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर था दैट वेंट इन वेन एंड द कंपनी इज स्टिल इन लॉस। व्हाट आई एम सेइंग दैट
स्पीड ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो है अगर वो कंट्रोल्ड है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर स्पीड ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ज्यादा है तो ये ऑटोमेटिकली एक थ्रेट बन जाएगा। लीगल फैक्टर पे आ जाए, लीगल फैक्टर पे आपके नंबर 1 नेचर ऑफ लॉस। नेचर ऑफ लॉस, लॉस का होना अच्छा है लेकिन लॉस का ओवर इन्फोर्स होना थ्रेट बन जाता है। अगर आप इंग्लैंड में जाएं, कोई भी प्रोडक्ट आपको सस्ती अमेरिका में नजर नहीं आती, रीजन नहीं, लेबर लॉस। कोई प्रोडक्ट दुनिया के साथ compete नहीं कर रही, व्हाट इज द रीजन? लेबर लॉस। नंबर 2 हेल्थ एंड सेफ्टी लॉस। नंबर 3 इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयमेंट लॉस। नंबर 4 इक्वल पे एक्ट। ये सारे के सारे लॉज इतने स्टिफ हैं, नेचर ऑफ लॉज इतनी स्टिफ है कि आप इन सारे लॉज के साथ कंप्लाई करते 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 बिजनेस को थ्रेट के अंदर घुसेड़ और आपकी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाती है। अगर तो कस्टमर की परचेसिंग पावर हो फिर तो ठीक है, और अगर कस्टमर की परचेसिंग पावर ना हो तो लो प्राइस कॉम्पिटिटर जब भी आएगा लाइक चाइना इन द मार्केट, तो आपकी जो है ना वो सेल्स गिर जाएगी एंड दीज लॉज विल टर्न इनटू अ बिग थ्रेट फॉर यू, क्योंकि ये लोकल टू दैट स्पेसिफिक कंट्री है जिसमें आप ऑपरेट कर रहे हैं, और लोकल टू द कंट्री लॉज जो है उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा आपके बिजनेस पे। तो नेचर ऑफ लॉस। नंबर 2 इसमें आप डिस्कस कर सकते हो हेल्थ एंड सेफ्टी, जो कि मैंने एक ग्लैंस में कर दिया। हेल्थ एंड सेफ्टी, एम्प्लॉयमेंट, इक्वल पे, ये सारे के सारे इक्वल पे, ये सारे के सारे जो लॉज हैं ये सारे के सारे यहाँ पे डिस्कस हमें की ओर होंगे। इकोलॉजिकल फैक्टर कहते हैं माहौलियात को। हम बात करते हैं फ्लड्स की, हम बात करते हैं रेन्स की, हम बात करते हैं रेन्स की, हम बात करते हैं सन की, हम बात करते हैं वेदर कंडीशंस की। वेदर कंडीशंस ह्यूमिड है, वेट है। अगर ये ह्यूमिड है तो आपकी ओवरऑल फैसिलिटीज बदल जाएंगी 10 साल के बाद, पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर शायद आपको यूनिक शुरू से चेंज करना पड़े बिकॉज ऑफ द ह्यूमिड, द लाइफ ऑफ द आयरन रिड्यूसेस। सन ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, रेन ज्यादा, यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल, फ्लड ज्यादा है, डिजास्टर्स हैं, दैट विल टर्न इनटू क्वेक्स, अर्थक्वेक जिसे कहते हैं। तो आपको उसके मुताबिक अपने आप को अलाइन करना पड़ेगा। सो दीज ऑल फैक्टर्स which are given in front of us actually create opportunities and threats। और एक बात याद रखिए, इनके अगेंस्ट जब भी आप प्रोटेक्शन शीट बनाएंगे, सेम प्रोटेक्शन शीट जो मैंने 5 फोर्सेस मॉडल में डिस्कस की है यू कैन यूज, मगर एक बात ध्यान में रखिएगा, एज दीज ऑल फैक्टर्स आर अनकंट्रोलेबल, इनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते तो इनके अगेंस्ट आप एडजस्ट तो कर सकते हो, मगर इनके अगेंस्ट आप कभी भी एक यूनिफॉर्म पॉलिसी डिजाइन नहीं कर सकते।